A very good morning to all of you, and a warm welcome to the sixth session of our STEAM webinar series 24 in 2024, a series by Whiteboard Education and Research Foundation in association with Deltron Technologies. It's an absolute pleasure to have you all join us today as we continue our journey of bridging the gap between corporate and education. Once again, we are back with our enriching sessions, and this is your host Shavangi. Today, we have a truly exciting and insightful session lined up for you all, that is, stock marketing and trading. So, guys, please welcome our expert guest speaker in stock marketing, Mr. Sukhinder Singh. Mr. Singh has years of experience, a wealth of knowledge, and is truly regarded in the industry. We are fortunate to have him with us today to share his insights and advice on navigating and challenging navigating the challenges and opportunities in the financial world. So thank you, Mr. Singh, and for joining us, and we are truly excited to hear from you. I encourage each and every one of you to actively participate, engage with the speaker, and use this opportunity to deepen your understanding. So let's give him a warm welcome. And the virtual stage is all yours, sir. But, sir, before we start, I would like to tell you that everyone's mic is muted. So if anyone is having any question or queries, they will be mentioning in the chat box and you can answer it from there itself. Okay, thank you. So let's start. Thank you for having me in your show. Okay, so let me introduce myself to you. My name is Sukhvinder Singh, and I'm working in stock market from last 10 to 12 years, and from last 4 to 5 years, I am a hardcore trader. And my experience with stock market is really very good. From last 4 to 5 years, I'm working almost 9 to 10 hours in stock market, and my investments are really growing very good. And I have very good experience in stock market. And today I'm sharing you my experience and how I started in stock market. I will tell you all about this. And I think everyone knows about the stock market right now because everyone is started investing in stock market. So let me tell you my story. From my story, I started stock market in 2008 or might be in 2009. And at that time, I was an investor. I don't know much about stock market. My brother is doing stock market, and he's saying that it's very good to make some money in stock market. But at that time, I don't know about anything the stock market. So after that, उसने बोला, and after that he said, and after that he said, कि you really just go with the stock market. It's really very good, and it's the booming industry right now. So I started the stock market. I research, and it's very interesting market. First of all, I will tell you, it's very interesting and very deep, and it's very wide. Okay, you can learn every day, every new thing in stock markets. It's always a new day in our stock market. You always learn something new in stock markets, and it's a very interesting game. And from 2010 onwards, I start stock markets, and I go through with I can say that I learned stock markets from YouTube. YouTube से मैंने सीखा, and it was really very fun experience for me. I devote my time approximately 4 to 5 hours every day in stock market, in learning stock markets. Sorry to interrupt you, sir, in between, but Uh, we got a chat that you can use Hindi also. So I think Hindi audience is also there. So you can use okay, okay, both the okay. language. Yeah. ओके 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 तो मैंने 2010 से स्टॉक मार्केट स्टार्ट की एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दैट एंड इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग था कुछ रोज नया सीखने को मिलता था हमेशा उसके अंदर और बहुत चैलेंजेस भी आए स्टॉक मार्केट के अंदर 2010 में मैंने पहले इन्वेस्टमेंट करी विद अ लिटिल अमाउंट मतलब 10,000 से सिर्फ मैंने आई स्टार्टेड माय जर्नी इन द स्टॉक मार्केट एंड वो भी अपने डैड से लेके at that time, I took my money from my dad and invested in stock market from 10,000 और बहुत एक्साइटिंग था वो बहुत कुछ सीखने को मिला एवरी डे और बहुत लॉसेस भी हुए स्टार्टिंग में
बट आई रियलाइज कि अगर मैंने लॉस किया तो किसी ना किसी ने जरूर उसमें से प्रॉफिट किया होगा। तो मैंने सीखा स्टॉक मार्केट्स को, यूट्यूब से सीखा, अपने ब्रदर से सीखा, और स्टॉक मार्केट के बहुत से बंदों से मिला, उन्होंने सिखाया, और खुद के एक्सपीरियंस से कि कहाँ मैंने गलती करी, कहाँ मैंने लॉस किया और क्यों लॉस किया, वहां पे क्यों नहीं रखा, स्टॉक लॉस क्यों नहीं लगाया। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी स्टॉक मार्केट के अंदर, वो करना बहुत जरूरी होता है। तो पहले माइट भी, मुझे लगता है कि आप लोग सारे स्टॉक मार्केट्स में हो गए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो, सबका कुछ ना कुछ होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कुछ मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक मार्केट्स में मैंने जीरोधा से स्टार्ट किया। पहले तो मैंने बैंक से स्टार्ट किया था। माय ब्रोकर इज आईसीआईसीआई बैंक, एंड आफ्टर दैट उनकी ब्रोकरेज थोड़ी हाई थी, उनकी प्रॉफिट थोड़ी हाई थी, तो मैं फिर बाद में धीरे 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 करके जीरोधा से स्टार्ट किया। जीरोधा आज की डेट में अकाउंट जीरोधा में इंडिया में बहुत ज्यादा है, और जीरोधा इज फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर इन इंडिया। कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? हेलो? Yes, we can. ओके। तो स्टॉक मार्केट, इट्स नॉट एन इजी गेम। आपको उसके अंदर बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने बस उसके अंदर पैसे लगा दिए और क्या कहते हैं उसके अंदर आपने अर्न करना शुरू कर दिया। इट्स ऑल्सो वेरी रिस्की गेम। बहुत सारे इसके अंदर एनालिसिस करने होते हैं, चार्ट्स देखने पड़ते हैं, कैंडल स्टिक्स होती हैं, वो सब कुछ सीखना होता है। और बहुत सारी चीजें होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो आपको धीरे 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 करके आपको खुद के एक्सपीरियंस से ही आती हैं। एंड सबसे मेन थिंग जो होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो होते हैं स्टॉक लॉस। स्टॉक लॉस लगाना आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत जरूरी होता है। कि आपने अगर कोई ट्रेड लिया है और अगर आपका ट्रेड अकॉर्डिंग टू आपके प्लान नहीं जा रहा है, तो आपको स्टॉक लॉस कहाँ पे लेना है और कैसे स्टार्ट करना है धीरे। जैसे जैसे एक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, देयर आर टू मेन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी में क्या होता है, हमारी निफ्टी 50, इट मीन्स कि निफ्टी 50 में हमारी इंडिया की मेन 50 कंपनीज जो होती हैं वो निफ्टी 50 में होती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया आपका, एल हो गया आपका, सीमेंस हो गया आपका, जोमेटो हो गया आपका, क्या कहते हैं अडानी के शेयर्स हो गए, अडानी ग्रुप हो गया, ये सारे निफ्टी 50 के अंदर होते हैं। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आपका बैंकिंग इंडेक्स होता है, जिसमें सारे बैंक्स होते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एंड ये आपका एसबीआई बैंक। ये सारे मेन बैंकिंग इंडेक्स होते हैं। एंड निफ्टी 50 में आपकी निफ्टी कंपनीज होती हैं, जैसे आईटी की कंपनीज हो गई आपकी, आपकी आपकी विप्रो हो गई आपकी, क्या कहते हैं सीमेंस हो गई आपकी, क्या कहते हैं। Sorry, sir, for the interruption again, but are you using any presentation? Actually, we are able to see your Microsoft Teams screen only. So can you see my Yes. screen now? Yes, yes. Yeah. So I'm talking about these two, Nifty and Bank Nifty. Okay. These are the main index in stock market. Okay. Every company has its shares in Nifty. So, for example, if Reliance, we talk, Reliance shares in Nifty 20 to 30% in Nifty. If we talk about in Bank Nifty, HDFC has the highest weightage in Bank Nifty. Okay. These are all index, ओके, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर सारे बैंक्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और निफ्टी के अंदर जैसे सारी कंपनीज होते हैं, जैसे भारती एयरटेल हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, सूर्य रोशनी हो गया, बीईएल हो गया, टाटा पावर हो गया आपका, जेएस एनर्जी, टाटा मोटर, ये सारी हमारी निफ्टी के अंदर कंपनियां आती हैं। ओके। और निफ्टी के अंदर भी कुछ और पार्ट्स होते हैं, जैसे निफ्टी ऑटो होता है, उसके अंदर सारे ऑटो शेयर्स आते हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया आपका, टीवी टाटा ग्रुप हो गया आपका, टाटा मोटर्स हो गया। उसके साथ ही निफ्टी आईटी होता है, आईटी के अंदर जैसे आईटी के स्टॉक सारे होते हैं। ओके। एंड फिर ये सारी कंपनीज हैं, मैकडॉवल्स है, एनएमडीसी वगैरह, ये सारी आपकी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के अंदर आती है। और इसमें होता है, एक होता है स्मॉल कैप, मिड कैप
एंड लार्ज कैप। स्मॉल कैप में वो होता है जो जो जिसके शेयर्स अराउंड 200 to 500 होते हैं, ये स्मॉल कैप होता है। एंड मिड कैप होता है जैसे आपका 1000 की शेयर्स में जो एवरेज प्राइस चलता है शेयर्स का, वो मिड कैप होता है। एंड लार्ज कैप जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे रिलायंस हो गया, अडानी ग्रुप हो गया या एल हो गया, इनके शेयर 2000 से 2500 के बीच में होते हैं, जो प्राइस वेरी करता है उनका, ये होता है लार्ज कैप्स। ओके, तीन तरह के होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। ओके, ये तीन टाइप के शेयर्स होते हैं। और जैसे आपको नॉलेज हो, आपको जैसे आपको पता है कि टाटा मोटर्स है आज की डेट में, जैसे टाटा के व्हीकल्स बहुत ऊपर जा रहे हैं आजकल, सेल्स बहुत अच्छी हैं टाटा की। एंड उसके बाद आज के आने वाले टाइम में ईवी का टाइम आने वाला है, ईवी सब लोग ईवी के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि और हमारे क्या कहते हैं उसमें टेस्ला भी इंडिया में क्या कहते हैं ईवी में आने की स्टार्ट कर रहा है। तो टाटा को जो इंडिया का जो टेस्ला माना जाता है वो टाटा को माना जाता है। तो आने वाले टाइम में टाटा कि जैसे आपको लगता है कि बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है टाटा के शेयर्स में, तो आप टाटा में इन्वेस्ट करें, या जो भी आपको नॉलेज है आप रिसर्च करें पहले टाटा के बारे में, उनकी बैलेंस शीट के बारे में, कि उनका प्रॉफिट कितने सालों से कितना गया, कितने साल उनका पर एनुअल उनका कितना रिटर्न आ रहा है, क्या उनकी सेल्स हैं। तो ये आपको धीरे धीरे करके सारी रिसर्च करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जोमेटो है, आज की डेट में जोमेटो ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, एंड इट्स रियली वेरी गुड गोइंग इन जोमेटो। जोमेटो का आईपीओ अभी आया था, इट कम अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर जोमेटो का आईपीओ आया था। उसके अंदर जोमेटो ने इतना ग्रो किया, इतना अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, 80 to 90 रुपीज के उसमें आया था जोमेटो का, क्या कहते हैं आईपीओ आया था। आईपीओ होता है जब कंपनी अपने नई कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करती है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। देयर आर टू exchanges in India, NSE and BSE. NSE means National Stock Exchange and BSE means Bombay Stock Exchange. इन ये दो एक्सचेंजेस हैं हमारे हमारे कंट्री की, और इनमें सारे शेयर्स क्या कहते हैं लिस्ट होते हैं। ओके, तो जैसे जोमेटो आया, नई लिस्टिंग्स आ रही हैं आजकल, नए आईपीओ आ रहे हैं। ऐसे पेटीएम का भी आया था, आप सब लोगों ने सुना होगा कि पेटीएम की हिस्ट्री क्या हो गया, बहुत अच्छा, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईपीओ था इंडिया के अंदर पेटीएम, और बहुत लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। बट कुछ पॉलिसीज आती हैं जो बहुत इफेक्ट करती हैं स्टॉक मार्केट में। आपको हमेशा अप टू डेट रहना होता है न्यूज को लेकर स्टॉक मार्केट के अंदर, कि क्या न्यूज चल रही है। जैसे पेटीएम के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज आई, और उसके बाद पेटीएम का शेयर बहुत बहुत ऊपर से बहुत नीचे गिरा भी। क्यों गिरा? क्योंकि न्यूज नेगेटिव थी, क्योंकि पेटीएम का जो बैंक था वो इन्होंने बंद कर दिया। तो उसके बाद वो नेगेटिव न्यूज आने के बाद स्टॉक के अंदर बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला और प्राइस बहुत नीचे आ गया उसका। तो आपको हमेशा देखना पड़ता है कि क्या न्यूज आ रही है। अब जैसे अब फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, अभी जैसे इलेक्शन ईयर है हमारा, तो इलेक्शन में अगर सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे दोबारा से, तो स्टॉक मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव लेके चल रही है। और अगर ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर स्टॉक मार्केट इसको बहुत नेगेटिव ले लेगी, और उसके बाद काफी स्टॉक्स के अंदर, तो न्यूज जो होती है इसके अंदर बहुत इफेक्ट करती है स्टॉक मार्केट पे। आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है कि न्यूज क्या चल रही है। जैसे टाटा मोटर्स के लिए कोई न्यूज तो नहीं आई है, एल को कोई नया ऑर्डर तो नहीं मिला, अगर ऑर्डर मिला है तो इट्स रियली गुड फॉर द कंपनी, और उनका ऑर्डर शीट उनका बैलेंस बहुत अच्छा है इस हिसाब से लेके। तो आपको हमेशा न्यूज को अपडेट करना पड़ता है। अब चार्ट्स पे चलते हैं हम। अच्छा, आप कभी भी स्टॉक मार्केट करते हो तो आपको चार्ट की बहुत जरूरत पड़ती है, कि उस स्टॉक का चार्ट क्या कहता है, तो आप वो चार्ट कहाँ से करेंगे। तो जो सबसे अच्छी, जिसे हम बोलेंगे कि चार्ट्स के लिए सबसे अच्छी जो क्या कहते हैं ऐप है, वो है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू इज द बेस्ट ऐप टू व्यू द चार्ट। आपको चार्ट्स देखने के लिए, आपको स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आपको चार्ट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। उसके लिए ट्रेडिंग व्यू द परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू go through with to understand the stock markets and understand the chart of the company. तो ट्रेडिंग व्यू मैं आपको सजेस्ट करूंगा। उसके अंदर फ्री वर्जन भी होता है और उसके अंदर पेड वर्जन भी होता है। ओके, तो अगर आपने स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप कुछ नया स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद तो आप उसका फ्री वर्जन लेके आप उसमें पेपर ट्रेडिंग तक कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग मीन्स कि आप अभी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप एनालाइज कर रहे हैं कंपनीज को, और आपको लगता है कि हाँ अगर मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो आई गॉट गुड रिजल्ट इन फ्यूचर, एंड आफ्टर दैट आप उसमें पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ओके, पेपर ट्रेडिंग मीन्स कि आपने स्टॉक जैसे एक पेपर पे लिखते हैं कि हाँ मैंने इतने स्टॉक लिया, और मेरी रिसर्च कहती है कि ये स्टॉक कल को 10 टाइम्स बढ़ता है, या 10% बढ़ते हैं, 5% बढ़ता है,
तो आप वो देखेंगे तो पेपर ट्रेडिंग इट हेल्प्स यू इन योर स्टार्टिंग कैरियर इन स्टॉक मार्केट। ओके, तो ट्रेडिंग व्यू आप जाए वहां पे और वहां पे आप अपना एक वॉच लिस्ट बनाएं। जैसे आपका इंटरेस्ट आपको मतलब कईयों का इंटरेस्ट बहुत ऑटो सेक्टर में होता है, उनको पता है कि ऑटो सेल्स क्या जा रही है। कईयों का इंटरेस्ट गवर्नमेंट में बहुत होता है, पॉलिसीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या आने वाली है। तो उससे आप अपनी वॉच लिस्ट बना ले कि मेरे को जैसे आईटी सेक्टर की बना ली या ऑटो सेक्टर की बना ली या गवर्नमेंट कंपनीज की बना ली या बैंकिंग स्ट्रक्चर की बना ली आपने, तो आप उससे वॉच लिस्ट बना सकते हैं। उस कंपनी का रिसर्च करें कि उसकी लास्ट ईयर सेल्स क्या थी, इस ईयर सेल्स क्या, ऑर्डर बुक, ये सब कुछ आपको गूगल पे जाएंगे आपको कंपनी के बारे में सब कुछ मिल जाता है। और बहुत सारी साइट्स हैं जिससे आप कंपनी की रिसर्च और कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज कर सकते हैं। और रिसर्च अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको स्टॉक मार्केट की रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है यहाँ पे टिप्स पे बहुत काम होता है कि मेरे दोस्त ने ये शेयर बोला और मैंने ये ले लिया, मेरे दोस्त ने वो बोला मैंने ये ले लिया, और बाद में लोग सारे बोलते हैं कि हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस है। अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 80% बंदे इंडिया में यही करते हैं कि वो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ टिप्स से चलती है और स्टॉक मार्केट सिर्फ एक गैम्बलिंग है। ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में। गैम्बलिंग नहीं है, आपकी रिसर्च, आपकी एनालिसिस, आपका मैथ्स, आपको कितना एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, इट रियली 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 मैटर्स। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग। और ये आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ रॉकेट साइंस, बट आपको बहुत कुछ इसके अंदर रिसर्च और इसके अंदर सीखना होता है। लोग 10-10 साल लग जाते हैं उनको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, बिकॉज ये बहुत हम एक छोटे से लोग हैं और आपका कंपटीशन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों से, जिनका पोर्टफोलियो अराउंड 1000 करोड़ एंड 2000 करोड़ है, जो पर डे की इतनी ट्रांजेक्शन करते हैं इसके अंदर। तो आपका कंपटीशन उससे होता है। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी रिस्की मार्केट। तो जब तक आपको आता नहीं है और आप इसको सीखने का सबसे जो जो मोस्ट तरीका है वो आपका एक्सपीरियंस ही है। आप कितना इसके अंदर अपना टाइम डिवोट करते हैं, कितना आपका इंटरेस्ट है। और आज की डेट में तो आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है आफ्टर कोरोना। कोरोना के बाद तो स्टॉक मार्केट इट्स आज राइट नाउ स्टॉक मार्केट इज गोइंग इट्स लाइफ टाइम हाई। आज की डेट में ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं अपने स्टॉक मार्केट्स, और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, जैसे ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं, ये इन्होंने डबल डबल मतलब डबल 100% रिटर्न दिया स्टॉक मार्केट के अंदर। पर वो सारा काम होता है रिसर्च से। आप कितने प्रॉफिटेबल हैं, आप कितनी आपको रिसर्च है उसके अंदर। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बहुत अच्छा है, आप इन्वेस्ट करके छोड़ दो, 5-10 साल बाद आप देखेंगे आपको कंपैरेटिवली, आप अगर इन्वेस्ट करते हो, जैसे हमारे देश में सबसे अच्छा एक इन्वेस्टिंग माना जाता है वही चला आ रहा है कि आप बैंक एफडीज में जाते हैं, एफडी में 7% इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अच्छी कंपनी में जिनके फंडामेंटल, जिनका आपको पता है कि कंपनी वेरी गुड, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 15 to 20% अप्रोक्सीमेटली आपको उसके अंदर रिटर्न्स मिलते ही मिलते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम एफडी से करें तो आप मान के चलिए कि डबल टू ट्रिपल रिटर्न्स मिलते हैं, और कई बार तो आपको उसके अंदर 50 to 100% रिटर्न्स में मिलते हैं अगर उस कंपनी के फंडामेंटल्स, उस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे जोमेटो, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो को ही देख लीजिए, या फिर आप किसी भी कंपनी आज की डेट में तो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी को देख लीजिए, कोल इंडिया को देख लीजिए, ओएनजीसी को देख लीजिए, बीएल को देख लीजिए, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक्स हैं। कंपनीज ग्रो, बहुत अच्छी कंपनीज ग्रो कर रही हैं। बट अभी जैसे स्टॉक मार्केट का एक पीक चल रहा है आजकल, लाइफ टाइम हाई पे बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है। और इवन कि हमारे देश में तो एफ आई एस मतलब जो बाहर के इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आज की डेट में इंडिया में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडियन इन्वेस्टर तो है ही बहुत। तो मेन जो आपका इसके अंदर फोकस आपको यही होना चाहिए कि आपको पहले इस पे टाइम डिवोट करिए। यूट्यूब में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप एक एज अ न्यू इन्वेस्टर आते हैं इसके अंदर, आपको सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब के अंदर आपको मैं चैनल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत अच्छे चैनल्स हैं उसके अंदर, आप सीख सकते हैं और आप अपना एक बहुत अच्छा कैरियर ग्रो। मैंने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ दी थी और बहुत टाइम डिवोट किया इसके अंदर, और आज आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फ्लेक्सिबल कि मेरे को वो बाउंडेशन नहीं है टाइमिंग्स की कि मेरे को जॉब करने आना है। सुबह उठे हो यहाँ पे अपना 9 बजे आप अपना एनालिसिस करो और उसके बाद आप अपना काम करो 3:30 बजे, एंड आफ्टर दैट यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर।
ओके, तो देयर इज नो टाइम बाउंडेशन। और अगर आपको आज काम करने का नहीं मन है तो आज आप काम नहीं भी कर सकते हो। आपको ये नहीं है कि ये एक ड्यूटी है जो आपको करनी करने, आपने अपने बॉस को हाय हेलो बोलने जाना ही है वहां पे ऑफिस के अंदर। तो यू आर द ओनर ऑफ दैट, बट आपकी रिसर्च और आपकी एनालिसिस और आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की मार्केट। ये आपको बहुत अच्छा भी दे सकता है और आपका पूरी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी पूरी वो क्या कहते हैं, खो भी सकते हैं आप इसके अंदर अगर आप बिना रिसर्च के देंगे। ये गैम्बलिंग नहीं है। ओके, आज हम स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा पहले स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे इन्फोसिस, बहुत अच्छा सुना होगा, सबने नाम सुना होगा आईटी की में, आईटी की उसमें इन्फी एक बहुत अच्छी कंपनी है और इसके पास इसकी ऑर्डर बुक्स और इसके पास बहुत अच्छा मतलब इसका रिजल्ट आता है। इन्फी ने बहुत अच्छे पास रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को। आज की डेट में ये शेयर चल रहा है अराउंड 1515। और आप इसका क्या कहते हैं लास्ट 3 इयर्स या 4 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो इन्फी 1000 या 900 पे वो करता था। और 1-2 साल में इन्फी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। एंड ये देखिए इसमें जो चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स पे इसके अंदर आपको मैं और चीजें दिखाता हूँ। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, ये देखिए ना, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। ये एनालाइज करना होता है कि आप कितनी जल्दी स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं आप लाइव ट्रेडिंग में जाते हैं। डे ट्रेडिंग में वैसे अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो 5 and 15 मिनट टाइम फ्रेम्स आर द बेस्ट टाइम फ्रेम टू डू इन लाइव ट्रेडिंग। ओके, और अगर आपको जैसे आज स्टॉक लेना है, BTST करना है, बाय टुडे सेल टुमारो, इट मींस बाय टुडे सेल टुमारो, तो आपको BTST करना है तो उसके लिए 1 डे के चार्ट बहुत अच्छे होते हैं, या आप वीकली का चार्ट ले सकते हो। और सबसे जरूरी बात उसके अंदर होती है कि आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ओके, जैसे ये हम एक इनफी का ही सपोर्ट, जैसे ये आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया। यहाँ पे जब स्टॉक आया इतनी बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया और इसके बाद बाउंस बैक किया, ऊपर जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको निकालने आने चाहिए। और जो आप नए जैसे इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये एक इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे। ये सारे जैसे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स बहुत आपको हेल्प करते हैं आपको कि आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हो। ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए आपको ये इंडिकेटर्स बहुत हेल्प करते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी कंपनी है, बहुत वाइड वाइड है। आप कितना मतलब इतनी सारी कंपनी है। NTPC हो गया, ये आपकी गवर्नमेंट सेक्टर है, बहुत अच्छे रिटर्न दिए। फार्मा ने आपका बहुत अच्छा रिटर्न दिया। कोरोना के टाइम में आपने सबने सुना होगा कि मेडिसिन की और ये सब की दवाइयों की बहुत क्या कहते हैं डिमांड थी, तो उसमें फार्मा ने बहुत निफ्टी को सपोर्ट किया था। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट आपको हमेशा बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। एक वो कहते हैं ना कि इंसान और स्टॉक मार्केट लास्ट में हमेशा उन्होंने ऊपर ही जाना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टॉक मार्केट जरूर आपको परेशान कर सकती है, आपको लॉसेस दिखा सकती है, पर लॉन्ग टर्म में एट द एंड ऑफ द अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में होगा और आप अच्छा इसके अंदर रिटर्न आप कर सकते हैं। बस आपको सीखना है, गैम्बलिंग नहीं है इसमें। आप टाइम इन्वेस्ट करें, आप सीखें और बहुत अच्छे रिटर्न, आजकल तो बहुत अच्छे रिटर्न दे रही हैं। आपने लोगों ने क्रिप्टोस के बारे में भी सुना होगा, बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, इथेरियम के बारे में सुना होगा। बिटकॉइन ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years। बिटकॉइन ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि आप किसी भी काम में जाएंगे तो आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता। और सेम एज स्टॉक मार्केट ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर को। फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years स्टॉक मार्केट इज गोइंग रियली बूमिंग। बट आपकी रिसर्च वही, कहना आपकी रिसर्च और आपको कितना आता है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो आपका एक्सपीरियंस कैसे है। और जो न्यू लर्नर है वो टीवी चैनल भी देख सकते हैं, जैसे आपका जी बिजनेस हो गया, ओके, एंड CNB से आवाज हो गया। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। ये बहुत अच्छे स्टॉक्स को एनालाइज करके बताते हैं कि फंडामेंटल्स बताते हैं कंपनी के, ये कंपनी कौन से पी पे चल रही है, कंपनी का ऑर्डर बुक्स क्या है, ये सब आपको बताते हैं। वहाँ पे आप वहाँ पे जाके फ्रॉम 9 AM टू 3:30 PM स्टॉक मार्केट का ये टाइम होता है। 9 AM स्टॉक मार्केट स्टार्ट होती है, बट और ये प्री ओपन होता है। ओके, प्री ओपन मीन कि जो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं। और 9:15 पे स्टॉक मार्केट एक्चुअली स्टार्ट होती है एंड 3:30 स्टॉक मार्केट बंद होती है।
एंड इसके बाद कमोडिटी जो है जिसमें आपका एमसीएक्स वगैरह है वो आपका रात के 11 बजे तक चलता रहता है। कमोडिटीज भी बहुत अच्छा रिफंड दे रही है। आपने गोल्ड भी सुना होगा, गोल्ड एंड सिल्वर इज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई। बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं गोल्ड और सिल्वर ने भी। और उसके बाद आपका क्रूड ने भी बहुत, अगर आपको करना आता है, आपको सपोर्ट, आपको रेजिस्टेंस पता है, आपको इंडिकेटर्स को यूज करना आता है प्रॉपर में, और कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत होते हैं, जैसे आई विल शो यू। सी दिस कैंडल स्टिक, दीज और कैंडल स्टिक, ओके। ये देखिए, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये आपको कैसे निकालना होता है। आपको इंडिकेटर, जैसे मैं ये 3 इंडिकेटर यूज करता हूँ, लक्स, अल्गो, टीबीटी एंड एमसीबी। मेरे लिए ये बहुत, आप अगर न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप क्या कहते हैं, मूविंग एवरेजेस को यूज कर सकते हैं, 20, 50, 100। मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं कि मूविंग एवरेजेस मतलब होता है 20, मतलब इट मीन्स कि स्टॉक ने उस 20 लास्ट के 20 डेज में कहाँ सपोर्ट लिया है और कहाँ रेजिस्टेंस दी है। मतलब सपोर्ट मतलब कि अगर ऊपर से गिर रहा था तो उसने सपोर्ट लिया इस पॉइंट पे जाके, और वहां से उसने स्टॉक ने फिर बाउंस बैक किया। और रेजिस्टेंस मतलब कि इस पॉइंट पे आके बार बार टच कर रहा था, और इसके बाद जब उसने इस रेजिस्टेंस को पार किया तो बहुत अच्छा वो रिटर्न्स देते हैं। जैसे यहाँ पे आके देखिए, स्टॉक ने 3 4 बार यहाँ पे आके कितनी कैंडल्स यहाँ पे बनाई, इसको पार नहीं कर पाया। बट इसके पार जब निकला तो उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना अच्छा उसने बाउंस बैक किया है यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया यहाँ का। अगर इसको पार करेगा तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर देखनी होती हैं, और बहुत अच्छी मूवमेंट होती है। जैसे आज की डेट में बैंक निफ्टी देखते हैं, मैं आपको शो करता हूँ बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी हमारा 46,860, जो लास्ट हमारा बैंक निफ्टी गया है वो 46,000। 46,000 इट मीन्स इसके अंदर बहुत वॉलेटिलिटी होती है, पूरे दिन में ये बहुत ऊपर नीचे करता है। ये देखिए, यहाँ से एक दिन में 800 to 900 पॉइंट्स की मूवमेंट आती है इसके अंदर। तो ये बहुत वॉलेटाइल होता है। अब शुरुआत में आपको सीखने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा इसके अंदर। इट्स नॉट सो इजी। और उसके बाद आप ऐसे भी स्टॉक मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है इसके अंदर। जैसे आप 4600, 46,000 फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि अभी 46,300 चल रहा है, तो हम 46,400 का हमें लगता है कि प्राइस इसका ऊपर जाना है, तो 46,400 की कॉल खरीद सकते हैं। और हमें लगता है कि प्राइस इसका नीचे जाना है, तो 46,200 की पुट खरीद सकते हैं। कॉल एंड पुट होती है। कॉल मीन्स आपको बाय करना है, पुट मीन्स आपको सेल करना है। और स्टॉक मार्केट में ये भी होता है कि आपको ये नहीं है कि आपको हमेशा बाय करना है। आपको लगता है कि आज जैसे कुछ बैड न्यूज आने वाली है कंपनी के लिए, या इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं जाने सकते, तो आप उस शेयर को पहले बेच भी सकते हैं और नीचे आप उसे खरीद भी सकते हैं। तो दे आर बोथ साइड, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक मार्केट में, कि आप पहले बेच भी सकते हैं और लास्ट में खरीद भी सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, बस वही है कि आपको इट्स अ टाइम टेकिंग, ओके। आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं धीरे धीरे करके। आपको पता लगता है कि एक दिन में जैसे निफ्टी की मूवमेंट, अगर हम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल लेके चले तो 200 to 300 पॉइंट्स की होती है, और बैंक निफ्टी की मूवमेंट अगर ज्यादा वॉलेटाइल है तो 1000 पॉइंट्स की होती है, ओके। इसके बीच में ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चलते हैं, रोज की जो उनकी मूवमेंट होती है। साइडवेज मार्केट होती है। साइडवेज मार्केट होती है कि उस दिन कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आती, कोई ज्यादा न्यूज नहीं होती। न्यूज बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं स्टॉक मार्केट को। और उसके बाद खाली इंडिया की न्यूज नहीं, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कि यूएस में कल कुछ हुआ या यूएस में रिसेशन आया, तो उसका इफेक्ट भी बहुत मार्केट आते हैं इंडियन मार्केट में। ये आपस में सारी वर्ल्ड की जो मार्केट्स हैं, जो मेन मेन मार्केट्स हैं, जैसे यूके की मार्केट हो गई, चाइना की मार्केट हो गई, और आपकी ऑस्ट्रेलिया की मार्केट हो गई, ये सारी आपस में, यूरोप की मार्केट हो गई, ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर एक में कुछ इफेक्ट आएगा, कुछ उस कंट्री में बुरा आएगा, जैसे अभी थोड़ा टाइम पीछे पहले रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो उसका इफेक्ट हमारी इंडियन मार्केट्स में भी आ गया। अब लोग बोलेंगे कि हमारा इंडिया का तो उससे कुछ लेना देना नहीं, पर ये जो इफेक्ट होता है ये ओवरऑल कंट्रीज में आता है। ऐसा नहीं है कि ये खाली आपका इफेक्ट उसी कंट्री, उसी रशिया में ही आएगा या यूक्रेन में ही आएगा। उसमें यूएस भी जाता है पार्ट, उसमें यूएस भी अपने आर्म्स वगैरह सप्लाई करता है, उसकी उसको भी पार्ट लेना पड़ता है उसके अंदर। तो उसकी स्टॉक मार्केट में, अगर यूएस की स्टॉक मार्केट जो है वो वर्ल्ड की मेन मार्केट है, और यूएस में कुछ होता है, पॉलिसीज आती हैं, रेट कट्स आते हैं, रेट कट, इन्फ्लेशन के रेट कट्स वगैरह आते हैं, तो वो इंडियन मार्केट को भी इफेक्ट करते हैं।
ओके, तो अब हम थोड़ा सा चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये ट्रेडिंग व्यू है, ये बहुत एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको चार्ट सीखने हैं। ओके, आप अपना ऐसे वॉच लिस्ट बना सकते हैं। आपको निफ्टी, जैसे मेरी ये सारी वॉच लिस्ट है, मैं इन इन शेयर्स में मेनली डील करता हूँ, काम करता हूँ, और ये इंडिया की बेस्ट कंपनीज में से एक है। ओके, निफ्टी 50 मीन्स आपको निफ्टी इंडिया की बेस्ट 50 कंपनीज। ओके, निफ्टी इंडेक्स होते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 100। ओके, 100 मीन्स इंडिया की 100 बेस्ट कंपनीज उसके अंदर आती हैं। ओके, अब हर सेक्टर की इसके अंदर कंपनीज हैं। आप जैसे वोल्टास जाएंगे, और फिर ये ऑयल एंड सेक्टर, और ये ऑयल की कंपनीज हैं, एसआरएफ है, या आपका तेजस नेट है, या आपके नेटवर्क की कंपनी है, गोदरेज है, गोदरेज कंज्यूमर। आपको पता है गोदरेज के कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, अच्छा, गर्मियाँ आ रही हैं, अब एक और एग्जांपल है, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, आपको पता है कि एसी की सेल्स बहुत ऊपर जाती है गर्मियों के अंदर। तो आप टाटा का वोल्टास का, या फिर क्या कहते हैं, ये सारी एसी की कंपनी को बाय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने फ्यूचर के आइडियाज को लेके, कि आपको पता होना चाहिए कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। थोड़े बहुत आपको, जैसे अब गर्मी आने वाली है, वही मैंने आपको बताया ना कि आप एसी के शेयर्स खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि जैसे दिवाली के टाइम पे ऑटो सेल्स, हमेशा हर कोई सोचता है कि दिवाली के टाइम पे हम नया ऑटो खरीदते हैं, तो ऑटो सेल्स अच्छी जाती हैं। सर्दियों में जैसे आपकी ये न्यू ईयर की पार्टीज वगैरह में आपको लगता है कि हाँ, न्यू ईयर आने वाला है, या फिर गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों में आपके होटल इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाती है, तो आप होटल के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, ये सारी न्यूज बेस्ड होती है। मतलब आप न्यूज, आपको कितनी नॉलेज है, आपको आने वाले टाइम में आगे क्या होने वाला है, पूरी रिसर्च आपको करनी पड़ती है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली। न्यूज के लिए हमेशा अपडेट रहना। और अभी तो जैसे इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन में स्टॉक मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रहती हैं। ओके, इलेक्शन का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है, तो स्टॉक मार्केट आप देखेंगे कि जाने वाले टाइम में अभी भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, और अच्छे ऊपर रिटर्न देंगी अगर मोदी सरकार दोबारा आती है। अभी पॉजिटिव लेके चल रही है स्टॉक मार्केट। ओके, और आप चार्ट्स को देखने के लिए आप फ्री वर्जन यूज करिए उसको। रोज आप चार्ट को देखिए, इंट्राडे चार्ट्स को देखें। इंट्राडे मतलब कि से टाइम फ्रेम होता है, 1 डे का चार्ट हम लगाते हैं। जैसे रोज के चार्ट, 1 डे का टाइम फ्रेम मतलब होता है कि आप हर दिन का इसमें, अब देखिए, एक दिन ऊपर गया, रेड कैंडलस्टिक बनी, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं सारे। ओके, तो धीरे धीरे आप जब समझेंगे, आप करेंगे, आपको समझ में आएगा, आपको पता लगेगा कि कैंडलस्टिक कैसे बनती हैं, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो आपको धीरे धीरे करने से पता चलेगा। और रिसर्च करिए, थोड़ा यूट्यूब से सीखिए। ऑल आई कैन से दैट। हेलो, हेलो, हेलो। Hi, Sukhinder. Can you hear me? या आई कैन हियर यू। Okay. अमेजिंग सेशन, आपने बहुत कुछ बताया, और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी चैट बॉक्स में, तो आई रियली वांट यू टू स्टार्ट विद सम आंसर्स। लाइक किसी ने पूछा हुआ है, सर हाउ कैन वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अ बिगिनर? अभी हम शुरुआत में, अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, तो आप क्या गाइड करते हैं? हम कैसे शुरुआत करें ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में? अगर मुझे एंटर होना है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? You can start. Okay, I will tell you as a beginner. आप अगर स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपना एक स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर देखिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ज़रोधा के साथ जाइए, ग्रो के साथ जाइए, या किसी के पास एंजल वन के साथ जाइए। एक आप वहाँ पे अपना अकाउंट खोलिए वहाँ पे जाके। ओके, उसके बाद वो ब्रोकर के साथ किसकी ब्रोकरेज अच्छी है और किसका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मेरे को पर्सनली ज़रोधा बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रोधा में जाइए, अकाउंट खोलिए। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद आप कंपनीज को देख, क्या कहते हैं, देखिए कि आपको ये वाला सेक्टर पसंद है, आईटी सेक्टर पसंद है, ऑटो सेक्टर पसंद है, या और कुछ नहीं। आप अगर आप ऐसे बिगनर हैं, तो आप सिर्फ निफ्टी निफ्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इट मीन्स आप इंडिया की बेस्ट 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं कि आप मेन कंपनीज जो हैं, जैसे आपको, और अगर आपको इतना नहीं पता उसके बारे में, तो आप रिलायंस में इन्वेस्ट करिए या अडानी में इन्वेस्ट करिए। आपको पता है कि ये तो आने वाले टाइम में ऊपर, टाटा, जैसे टाटा मोटर्स की आज की डेट में बहुत अच्छा टाटा ग्रुप जा रहा है, तो आप टाटा में इन्वेस्ट करिए। आने वाला टाइम आपका ईवी का है,
तो आप ईवी में इन्वेस्ट करिए, आप उसके टाटा पावर में इन्वेस्ट करिए। तो धीरे धीरे करके, और एसआईपी करिए। ये नहीं कि आपका जैसे 1 लाख का आपने पोर्टफोलियो अपना बनाना है, तो आप ऐसा करिए कि 10,000 हर महीने उसे डिवाइड कर लिए, हर महीने 5,000 10,000 डालते रहिए। तो उससे आपका क्या रहेगा कि जब से मार्केट गिरती जाएंगी तो आपका उसके अंदर एड ऑन होता जाएगा और वो आपकी एवरेजिंग आती जाएगी। तो आपको सारा पैसा एक बारी में नहीं लगाना है कभी भी। आपको अपने पैसे को पहले आपने देखना है कि आपके पास अमाउंट कितना है, आपने उसके अंदर कितना इन्वेस्ट करना है, और आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए फिर छोड़ देना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप छोड़ेंगे, आपको 3-4 साल बाद, आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू गारंटी, आप अपने किसी भी लाइफ स्पैन उठा के चल लीजिए, निफ्टी ने आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए आपकी लाइफ में। आपको बहुत अच्छा, और अगर आप कंपैरिजन जाएंगे तो आपको एफडी से डबल टू ट्रिपल रिटर्न्स मिला है हमेशा निफ्टी के अंदर। और अगर आप इंडिया की बेस्ट कंपनीज में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। स्टार्टिंग में आप यही करिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करिए, और धीरे धीरे जब आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपको पता लगता जाएगा, आप रिसर्च करेंगे थोड़ा, तो आप इंडिया की बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करिए, गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, अच्छे होटल्स में इन्वेस्ट करिए, आईटी में इन्वेस्ट करिए, बैंक जैसे मेन बैंक है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, मेन एसबीआई में इन्वेस्ट करिए। तो आप धीरे धीरे करके, और सारा पैसा एक बारी में नहीं डालना है, कुछ कुछ करते करते आपको धीरे धीरे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करनी है आपको। जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, एसआईपी आजकल बहुत चल रहा है, ये क्या करते हैं, ये आपकी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो आप वही खुद से भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपको क्या रिटर्न देता है, 10 to 12 to 15%, और यही आप चीजें खुद से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा है। आपको आपका पोर्टफोलियो कई बार तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने पे 50 टू, मैंने वही बताया कि 50 to 100 टाइम्स भी आपका पोर्टफोलियो चला जाता है। तो आप वो खुद से इन्वेस्ट करिए, खुद से रिटर्न करिए, और अगर आपको और कुछ नहीं भी पता तो एटलीस्ट इंडिया के ऊपर भरोसा करो, इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर भरोसा करो, और आप निफ्टी के अंदर बस ये करो कि निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स में आप मेन कंपनी में इन्वेस्ट करो। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी बात, एक बारी में पैसा नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके उस पैसे को इन्वेस्ट करते जाना है, तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा बहुत अच्छा रहेगा। और स्मॉल टाइम में लिए डरना नहीं है। माइट भी आपने कल 10,000 लगाए, मार्केट गिर सकती है, आपका पोर्टफोलियो रेड में आ सकता है, डरना नहीं है उस चीज को लेके। आपका अगर पोर्टफोलियो नीचे आता है तो आपको उसके अंदर थोड़ा और मनी इन्वेस्ट करना है, पर आप लॉन्ग टर्म में जब तक रहेंगे, मैंने वही पहले भी कहा कि स्टॉक मार्केट और इंसान ने हमेशा लास्ट में ऊपर ही जाना है, तो लॉन्ग टर्म में ऊपर रहेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आप हमेशा ग्रीन में रहेंगे। लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे उसके अंदर। और बेस्ट कंपनीज में लगाइए इंडिया की, रिस्क मत लीजिए, और किसी की टिप पे मत काम करिए कि आपके दोस्त ने बोल दिया कि ये वाला कंपनी ले लो, ये वाली कंपनी, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, मैंने उसमें नहीं। जब तक आपको खुद नॉलेज नहीं है, आप खुद से कोई रिसर्च नहीं कर सकते हो, तब उस कंपनी में मत रिसर्च करो। इंडिया की बेस्ट कंपनी में रिसर्च करो, आपको हमेशा प्रॉफिट रहेंगे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिमरन के साइड से है, एंड सिमरन इज आस्किंग कि इज इट ओके इफ वी चूज अप स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक? तो क्या अपस्टॉक इज ऑल्सो अपस्टॉक इज ऑल्सो ब्रोकरेज कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। मेरे ख्याल से तो वो ब्रोकरेज भी अपनी आज की टाइम में उनकी शायद जीरो चल रही है, so it's a very famous company, you can go with the upstocks, yeah, good. Okay, ठीक है, थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, कौन से वेबसाइट्स हैं जहां से हम कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं? आप कंपनी के फंडामेंटल्स तो आप कंपनी की वेबसाइट पर भी जा सकते हो, गूगल पे भी जा सकते हो। आपकी बहुत सारी investing.com है एक करके, और आपका एक investing.com है, एक ग्रो है। आप गूगल पे जाइए, आप वहाँ पे उसको लिखे, विकिपीडिया में लिखे उसके कंपनी के फंडामेंटल, या लास्ट उनके बीएससी की वेबसाइट है, बीएससी एंड एनएससी, ये 2 एक्सचेंजेस हैं हमारी इंडिया के अंदर, और आप इनकी वेबसाइट्स में जाइए, आपको कंपनीज के बारे में वहाँ पे जाके आप कंपनी के पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट फंडामेंटल, आपके ऑर्डर बुक्स क्या है, सब कुछ आपके उसके अंदर पता लग जाएगा। Okay, thank you again. And the next question that we have is from Anshu, and Anshu is asking, sir, is it good to invest in penny stocks? आप क्या recommend? I don't recommend penny stock. Penny stocks में बहुत ना अच्छी कंपनीज पेनी स्टॉक में मेरे ख्याल से बहुत कम होती हैं। पेनी स्टॉक्स में ना बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और इनमें इन्वेस्ट करके ना आपको रिटर्न्स इतनी अच्छे नहीं मिलेंगे। वही मैंने कहा, आप पेनी स्टॉक, आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें ना, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है वो सस्ती है कंपनी, 2-2.5 रुपए 10 रुपए में आपको बहुत सारे शेयर मिल जाएंगे, पर आपको उसकी रिटर्न्स इतनी जल्दी नहीं मिलेगी।
आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको अच्छी कंपनीज में ही हमेशा इन्वेस्ट करना है। आप हमेशा इन्वेस्टिंग एक अच्छी कंपनीज में करेंगे, अच्छा रिटर्न आपको तभी मिलेगा। पैनी स्टॉक्स मैंने फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आज तक कभी पैनी स्टॉक्स नहीं लिया और मेरे को इन्वेस्टमेंट करना इन पैनी स्टॉक्स में कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता। ओके। अच्छा, ग्रोथ सुखित, बहुत स्लो है। आप हमें ये बताइए, जैसे अभी आपने एक सेशन लिया एंड इट वाज रियली गुड। आई आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम था और बहुत छोटे टाइम में हमने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द चार्ट जो आपने एक्सप्लेन करा, आज के टाइम पे वी एज अ मतलब न्यू जनरेशन, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑन द चार्ट। हमें वो चार्ट बहुत अच्छे से समझ नहीं आता है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे टू अंडरस्टैंड दैट चार्ट? उसके उसके हर एक चीज को, फंडामेंटल को समझने के लिए हाउ कैन वी लर्न, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट चार्ट? चार्ट्स, ओके, चार्ट्स आई एम टेलिंग वेरी ऑनेस्टली, चार्ट्स रीड करना, आप स्टार्टिंग में अगर आप चार्ट्स समझना चाहोगे, चार्ट रीड करना चाहोगे, इट्स नॉट एन इजी थिंग। ओके, आपको चार्ट्स को समझने के लिए आपको उसके अंदर टाइम देना पड़ेगा। कम से कम नहीं तो आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न सारे याद करना है। देयर आर लॉट ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, अराउंड 50 to 100 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। बट जो फेमस कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, जैसे शूटिंग स्टार हो गया, आपका डॉजी हो गया, आपके बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। लेट मी शो यू अगेन। ओके, लेट मी शो यू। ओके, ओके, देखिए, हर कैंडल आपको अलग एक अलग टाइप की बन रही है, राइट? यू कैन सी दैट हर कैंडल एक अलग टाइप की कैंडल है। ओके, तो ये आपको सीखने के लिए इट विल टेक टाइम। ओके, इट विल टेक योर रिसर्च। आपको कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। आप इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं। आप स्टार्टिंग में आप फिबोनाची से करिए। आपको दिखाता हूँ फिबोनाची। फिबोनाची लेवल्स, आप फिबोनाची लेवल्स पे जाइए। फिबोनाची लेवल्स पे यही देखिए, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ये फिबोनाची लेवल्स होते हैं कि जो स्टार्टिंग होती है उसमें आपको कहाँ आके एक बार के लिए वो स्टॉक रुक सकता है, कहाँ आके वो रेजिस्टेंस ले सकता है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। चार्ट पैटर्न और चार्ट को सीखना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सीखोगे, आपको मजा आएगा। आप खुद से निकालोगे कि आज मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकती है, कहाँ रेजिस्टेंस ले। सपोर्ट क्या होता है, जैसे आप 10 दिन का सपोर्ट कैसे निकलेगा, आप उस 10 दिन में आप देखेंगे कि मार्केट ने कहाँ जाके सपोर्ट लिया, कहाँ जाके। अब जैसे 1 डे का सपोर्ट है, यहाँ देखिए, ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है नीचे। मार्केट अब इसको सपोर्ट मान लेगी। यहाँ जाके एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार। ठीक है, ये सपोर्ट धीरे धीरे लिया। ये आप खुद से निकालेंगे, खुद से आपको पता लग जाएगा। अगर आप रोज के रोज चार्ट देखें, खुद से आपको पता लगेगा कि कल मार्केट ने यहाँ जाके सपोर्ट लिया था, अब यहाँ से मुझे बाय करना है, और यहाँ से मुझे अगर स्टॉक लॉस कैसे लेना है, उस सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे स्टॉक लॉस लेना है। कि अगर मार्केट ने कल वाला सपोर्ट तोड़ा तो इट मींस मार्केट वीक है और मार्केट और नीचे जाएगी। तो आप वो खुद से निकालेंगे सपोर्ट कि कल मार्केट ने क्या कहाँ पे जाके सपोर्ट लिया था, आज मुझे वहीं पे बाय करना है। अगर उससे स्टॉक को मार्केट ने सपोर्ट वाली जगह को तोड़ा तो मुझे वो अपना स्टॉक लॉस देना है। तो ये सारी चीजें खुद आपको अपने एक्सपीरियंस से, आपको लर्निंग से खुद ब खुद समझ आती रहेंगी कि किस पॉइंट पे क्या प्राइस पे मार्केट जाके रुक रहा है, किस प्राइस पे वो जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, किस प्राइस को उसने बार बार टच किया है। उस प्राइस को बार बार टच करने के बाद, जब उस प्राइस को एक बार टच करने के बाद 5-10 बार उस प्राइस को टच करेगा, उसके बाद वो जब उससे आगे निकलते तो बहुत अच्छा वो क्या कहते हैं उस समय गेन देगा। तो ये आपको धीरे धीरे खुद टाइम फ्रेम्स लगा के 5 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, कहाँ पे मार्केट आप बार बार देखिए। अब जैसे मैं पर्सनली जब ट्रेड लेता हूँ, मैं 5 मिनट में भी देखता हूँ कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। 15 मिनट भी देखता हूँ और 1 डे में भी देखता हूँ। तीनों में देख के उसके बाद जब मेरे को कंफर्मेशन मिलते हैं कि हाँ, अब मेरे यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड सही आ रहा है, तभी वहां पे जाके, क्योंकि यहाँ पे खोने में भी आपको टाइम नहीं लगता। आप आप अपना 10 15 20 हजार 50 हजार 5-10 मिनट के अंदर भी आप यहाँ पे हो सकते हैं, अगर आपने राइट इन्वेस्टमेंट नहीं करी एट द राइट टाइम। तो आपको बहुत अच्छे से पहले इन्वेस्ट करना है। ट्रेडर आप नहीं बनिएगा अभी कोई भी, जब आप स्टार्टिंग में हैं। जब तक आप पेपर ट्रेडिंग से सीखिए, धीरे धीरे करके। पेपर ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी साइट्स भी आती हैं आपके। हर आपका जो भी आपका ब्रोकर है, जैसे जीरोधा हो गया, कोई भी होगा, वो आपको पेपर ट्रेडिंग
अलाउ करता है, उस पेपर ट्रेडिंग में चीजें आपको एक एग्जांपल एक अमाउंट दिया जाता है, वो लेकिन वो एक मतलब कि एक डमी अमाउंट होता है। आप उस डमी अमाउंट से आप क्या कहते हैं लाइव मार्केट में भी क्या कहते हैं ट्रेड्स ले सकते हैं, जिससे आप सीखेंगे कि आपका ट्रेड सही है, आपने एनालिसिस जो किया था आपके अकॉर्डिंग किया कि नहीं दिया। तो आप स्टार्टिंग करिए पेपर ट्रेडिंग से, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए और फिर सीखिए और फिर करिए उसके बाद। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको एक्सपीरियंस आप देना पड़ता है पहले इस चीज को। Okay, thank you, sir. So, sir, ठीक है। next question है हमारे पास कि like is investing in small caps more profitable than blue chip companies? या अभी फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years स्मॉल कैप कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आप किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को देखिए, ब्लू चिप कंपनी इट्स ऑलवेज वेरी कॉस्टली। ओके, स्मॉल कैप Mm-hmm. कंपनीज में आप यह होता है कि आप थोड़े अमाउंट में आपको अच्छे रिटर्न, आज पिछले लास्ट 4 to 5 year बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन हर चीज का एक वो आता है, क्या कहते हैं, एक पीरियड आता है। अभी उस टाइम पे स्मॉल कैप कंपनी में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, ब्लू चिप कंपनी में इतने अच्छे रिटर्न नहीं आए हैं। पर अभी Mm-hmm. स्मॉल कैप कंपनी लास्ट टू आप अभी 3 या 4 दिन का डाटा देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनीज में से अभी जैसे स्टॉक मार्केट नेगेटिव गई है, तो स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ज्यादा गिरी भी हैं। कारण उसका यही था कि स्मॉल कैप कंपनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ओके, और अभी तो Okay. ये म्यूचुअल फंड वालों ने भी आया है, अभी अभी लास्ट स्टेटमेंट आया है, पिछले फ्राइडे या सैटरडे स्टेटमेंट आया है कि स्मॉल कैप कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, अभी हम स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये टाइम टू Mm-hmm. टाइम आपकी रिसर्च आपको करनी पड़ती है कि स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे तो नहीं चल रहा, कितने हाई पे चल रहा है, और अभी इसकी ग्रोथ कितनी बाकी है, अभी उसके अंदर ऑर्डर्स कितने बाकी हैं। और आपको क्या कहते हैं देखना पड़ता है कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज तो नहीं आ रही है। उसके अकॉर्डिंगली आप फिर आप स्मॉल कैप कंपनी में भी कर सकते हैं। तो वो चीजें आपको पहले देखनी पड़ेंगी कि स्मॉल कैप इसने कितना पास कितना रिटर्न दिया आपको। और डिविडेंड बहुत अच्छे देते हैं आजकल, तो हमारी जितनी भी ये क्या कहते हैं आपकी सरकारी कंपनी है, बहुत अच्छा डिविडेंड्स दिए इन्होंने। तो आप स्मॉल Mm-hmm. कैप कंपनी में भी जा सकते हैं, पर हमेशा स्मॉल कैप कंपनी में अच्छी कंपनी में Okay. जाइए। Okay. Thank you, sir. Sir, next question है कि can you give some example ऐसी trading strategies का जिन्होंने consistently अच्छा perform किया हो over time? ट्रेडिंग में आप देखिए, आप किसी भी अच्छी कंपनी को ले लिए, उन्होंने निफ्टी आप कंसिस्टेंटली Mm-hmm. देखें, आप निफ्टी, हर्षद मेहता हुआ, सबने सुना होगा, हर्षद मेहता के टाइम पे मार्केट बहुत नीचे गई थी। ठीक है, उसके बाद Mm-hmm. रिसेशन आया था यूएस में, तब मार्केट बहुत नीचे गई। कोरोना हमारा आया था, तब मार्केट बहुत नीचे गई। पर आज की डेट में भी मार्केट लाइफ टाइम हाई पे जा रही है। तो अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए, तो आप हमेशा, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेन मेन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करें, जिनका आपको लगता है कि पोर्टफोलियो और उन कंपनीज बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपको हमेशा कंसिस्टेंट रिटर्न्स देती हैं। लॉन्ग Mm-hmm. टाइम में आपको हमेशा कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलेंगे। आप कभी भी निफ्टी का कुछ भी उठा के देख लीजिए, पिछले पास्ट ईयर्स का जब भी आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, निफ्टी ने आपको मिनिमम हर साल 10 to 12% रिटर्न दिया ही है। हर साल मिनिमम 10 to 12% रिटर्न मिले हैं। तो ये कंसिस्टेंट रिटर्न है अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। कुछ भी हुआ, बहुत कुछ है, लड़ाइयाँ हुई, इतना कुछ हुआ, रिसेशन आया, हर्षद मेहता जैसे केस हुए, सत्यम जैसे आपने सुना होगा, सत्यम के Mm-hmm. टाइम में बहुत फ्रॉड कंपनी थी, उसके केस हुए। पर वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो नीचे जाता है, वो सारी नेगेटिव न्यूज को करने के लिए वो सारी नीचे जाता है। बट कंसिस्टेंट उसके बाद कोरोना के टाइम पे एक दिन में थाउजेंड थाउजेंड से 1000 to अराउंड बैंक निफ्टी, मेरे ख्याल से कोरोना जिस दिन आया था, जिस दिन न्यूज आई थी, 2000 to 2500 पॉइंट्स नीचे गया था। पर उसके बाद भी Mm-hmm. बैंक निफ्टी ने रिटर्न किया, इतनी अच्छी रिटर्न आई है इंडिया में। आजकल हर छोटा छोटा हाउस वाइफ लेके या किसी भी जॉब क्लास को ले लिया, किसी भी बिजनेस क्लास को ले लिया, थोड़ा बहुत वो अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर कर ही रहा है। तो स्टॉक Mm-hmm. मार्केट के अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और इवन की एफआईएस जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वहां से भी बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके अगर आप अच्छी बेस्ट कंपनी निफ्टी 50 में अगर हम इन्वेस्टेड रहेंगे, और अगर आप अच्छी बेस्ट कंपनीज में रहेंगे, तो आपका कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए Okay. आपको थोड़ा बहुत जरूर परेशान कर सकता है, पर लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आपको हमेशा बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। निफ्टी ने कभी भी आप कोई भी पास रिटर्न 10 to 12% से रिटर्न कभी कम नहीं दिए उन्होंने। Okay. Okay, sir, thank you. And sir, do you believe that sentiment has any role, to play in the stock market? आई रियली थिंक सो, सेंटिमेंट्स पे रियली, मतलब आप
कितनी बार होता है कि आपका स्टॉक लॉस हिट करने वाला होता है, आपको लगता है कि ये मतलब ये स्टॉक नहीं चलेगा, आपका बहुत पेशेंस टेस्ट करता है, आप कहते हो कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर जा रही है पर मेरा स्टॉक क्यों नहीं नीचे जा रहा। पर आपको टाइम टू टाइम आप इन्वेस्टेड हो, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड हो। टाटा मोटर्स इतने सालों तक नहीं चला, पर अभी लास्ट मतलब आप फ्रॉम लास्ट 5 to 6 मंथ टाटा मोटर अपने टाइम से डबल टू ट्रिपल हो गया। ओके, फ्रॉम अगर आप 3 महीने पहले का चार्ट देखें तो टाटा मोटर तो अराउंड 300 to 400 पे चल रहा था, और आज की डेट में टाटा मोटर 1000 से ऊपर, 1000 अभी टच किया उसने। तो टाइम लगता है आपको, पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और आपको अपनी कंपनीज के अंदर जिसमें आपने वो आपको उसके अंदर विश्वास हो, उसके अंदर ग्रोथ हो, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और ये Okay. बहुत माइंड गेम है, आपको बहुत अपना माइंड स्टेबल करना पड़ता है, आपको अपनी थॉट से नहीं चलना पड़ता। कुछ लोग ऐसे करते हैं जो नए आते हैं, मैंने बहुतों को देखा, अरे यार आज तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया, अरे यार ये शेयर तो 10 रुपए गिर गया, अब और कितना गिर जाएगा, अब तो ले ही लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, 10 रुपए गिर गया वो 20 रुपए भी गिर सकता है। आप इस चक्कर में मत रहो कि आप वो 10 रुपए शेयर गिर गया तो आपने बाय कर लिया है, ये इतना गिर गया और कितना गिरेगा, वो आपको नहीं पता है। वो आप पहले उसके रिसर्च करिए, उसका उसका क्या कहते हैं सपोर्ट कहाँ पे है, इस प्राइस पे वो कितने दिन तक टिका है, उसके अंदर अच्छे फंडामेंटल देखिए, तब जाके आप रिसर्च करिए। आप चार्ट को धीरे 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 करना सीखेंगे, रोज देखेंगे, रोज करेंगे, आपको खुद ब खुद आएगा चार्ट। मैंने किसी कहीं से नहीं सीखा, खुद जाके अपने एक्सपीरियंस से सीखा। मैंने कहाँ गलतियां करी, खुद देखा कि आज मैंने यहाँ पे इतना लॉस खाया। अगर मैंने लॉस खाया तो किसी ने प्रॉफिट भी खाया होगा, तो मैंने क्या गलती करी, अपनी गलतियों से पेपर ट्रेड कर करके मैंने सीखा, कहाँ गलतियां करी, कहाँ सपोर्ट, कहाँ बहुत सीखा, उसके बाद आता है। तो टाइम लगता है, पर अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको बहुत मतलब टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा वो। Right, right. Okay, और sir, अगर one आप एक बार last question. ट्रेडर बन जाते Yes, हो, please. प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो, आई एम टेलिंग यू, इस मार्केट से ज्यादा पैसा और कहीं नहीं है। और जो मजा इस मार्केट को करने का है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप जब मर्जी करिए, जब आपका मन नहीं है आज काम करने का मत करो। और आप अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, काम नहीं भी कर रहे, पर आपके लिए वो कंपनीज काम कर रही हैं और उनकी ग्रोथ हो रही है, तो आपकी भी ग्रोथ हो रही है। जैसे रिलायंस की ग्रोथ हो रही है, आप ये देखिए, तो आपने भी उस कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो रिलायंस तो काम कर ही रहे हैं ना, आप सोच रहे हो तो रिलायंस की कंपनी तो चल रही है, तो टाइम बाय टाइम आपको भी रिटर्न मिलते रहेंगे। तो अगर आपको आ जाता है और आप एक्सपीरियंस इसमें टाइम देते हो, सब कुछ करते हो, तो आपको एंड फ्यूचर आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे इसका। बट आई एम टेलिंग इट्स अ वेरी रिस्की मार्केट। कभी भी किसी टिप पे मत काम करिए, खुद रिसर्च करिए, खुद से अपने फंडामेंटल्स क्लियर करिए, उसके बाद काम करिए इसके अंदर। और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए, सारा पैसा एक बारी में नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है। Okay. Thank you, sir. Sir, one last question. आप किसी YouTube चैनल की बात कर रहे थे, from where you have learned. So, if you can tell it. या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं आजकल तो, बहुत सारे हैं, पर आप अगर यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो एक मनीष करके है, लर्निंग फ्रॉम मनीष, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, वो सीए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया है। एक पुष्कर राज करके है, वो आपको बिगनर से सिखाता है, उसके चैनल पे जा सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप कुछ मैं अभी नाम नहीं याद आ रहा है कैलकुलेटर, बट वो कुछ इंग्लिश पर्सन भी हैं जो बहुत अच्छा चैनल सिखाते हैं। आप लर्निंग विद मनीष पे जा सकते हैं, यहाँ पे पुष्कर राज से जा सकते हैं, या बूमिंग बुल्स है एक चैनल करके, या बूमिंग बुल्स से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आप ये चैनल पे जाके स्टार्टिंग कर सकते हैं, आपको उसके बाद खुद ब खुद वहां से लिंक मिलते जाएंगे। और आप हमेशा जैसे आप बिगनर है तो वहां पे जाके लर्निंग फ्रॉम द बिगनर स्टॉक मार्केट, वहां पे जाएंगे और वहां पे जाके आपको बहुत अच्छा लर्निंग के लिए मिल जाएगा मटेरियल, आप लर्न कर सकते हैं। आप फ्रॉम दी मतलब आप स्टार्टिंग से लर्न कर सकते हैं। और एक लर्निंग के लिए और भी है, आप जी बिजनेस देखिए और सीएनबीसी आवाज वगैरह देखिए, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। Okay. Yeah. Okay, sir. Thank you so much. And I think we are done with the questions. So, Yeah. thank you all for joining us today for this informative webinar. And we are truly fortunate to have Mr. Sukhinder Singh as our guest speaker, who shared his valuable insights and expertise on the subject. I hope you all find this session useful and informative, and that you were able to learn something new today. Remember, guys, the world of stock market and trading can be complex and ever changing.
So it's essential to stay informed and updated. Once again, thank you so much, sir, from the entire Deltron team and Whiteboard Foundation for sharing your time and knowledge with us today. And thank you all for attending the webinar, and we look forward to hosting more such events in the future. Thank you all. Thank you so Thank much. thank you.